First of all, we need to learn three basic formulas for finding the perimeter of any figure. The first is perimeter of a square. The formula for finding the perimeter of a square is 4 into side. That means whenever a question would be given to you to find the perimeter of any square field or a square shaped object, only one side will be given to us and we will have to multiply that by 4. यानी हम 4 into side करेंगे और हमारा perimeter निकल आएगा. Next is perimeter of a rectangle, which is 2 into length plus breadth. यानी कि हम length और breadth को add करके 2 से multiply कर देंगे. The next one is perimeter of any figure apart from square or rectangle. If any other figure is given to you and you have to find the perimeter of it, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, sum of all sides. अच्छा, first of all let us understand why the perimeter of square has the formula of 4 into side. This is a square. We know that in square all the sides are same. So the common method to find the perimeter of any figure is sum of all sides. Now with this, if I have to find the perimeter of this square, so I would be writing perimeter is equals to side plus side plus side and plus side. Now we have already studied about repeated addition. How many sides are there? 1, 2, 3 and 4. So if we multiply 4 into side, that would become 4 into side, and that's the perimeter of square. Similarly is the case with rectangle. Suppose this is a rectangle. Now length and length would be same, breadth and breadth would be same. Now if I have to find the perimeter of this rectangle, what I would be writing is perimeter is equals to length plus breadth plus length plus breadth. This would be the common method. Now there are two L's, यानी कि 2 into length plus 2 into breadth, because there are two lengths and two breadths. So now if we take 2 as a common, अगर इसमें से 2 common ले लेंगे, so 2 length plus breadth. This would be the perimeter of rectangle. Okay. Now let's take few examples so that you get more clear with this topic. Suppose a question is given to us like this. We have to find the perimeter of square. Okay, this we have to find और हमें उसका साइड दिया हुआ है 10 centimeter, right? So we would be applying the formula for this as perimeter. See, writing a formula is very necessary. अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. So it's better to write the formula before solving it. So perimeter of square is equals to 4 into side. अब 4 into 10 हो जाएगा यहाँ पे. 4 into 10 is 40. Now यहाँ पे यूनिट क्या दी थी? सेंटीमीटर. वहां पे भी यूनिट क्या चली जाएगी? सेंटीमीटर. Now suppose another question is given to you. Perimeter of square is equal to 16 centimeter and you have to find the side. हमें perimeter of square दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है? उसका साइड. तो हम क्या लगाएंगे? साइड इज इक्वल टू perimeter by 4, right? तो perimeter यहाँ कितना है? 16 by 4 will be equal to 4 centimeter. हमने कुछ नहीं किया, यहाँ 4 into साइड कर रहे थे, वहां हमने perimeter by 4 कर दिया, हमारी साइड निकल आई. Similarly is the case with rectangle also.
suppose a question is given, you have to find the perimeter of rectangle और हमें लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ क्या दी गई है 10 और ब्रेथ दी गई है 3, हमने वैल्यू रख दी, ये हो गया 13 into 2 is 26। तो यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर, हम यहाँ रख देंगे सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब बारी आती है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की, वो आप इंटरचेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कभी कभी हमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें एक बाउंड्री है, सपोज दिस कैन बी अ फील्ड और अ पार्क। अब हो सकता है आपसे वो ये कहे कि इस पार्क की बाउंड्री में हमें पेरिंग करनी है या हमें फेंसिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, जब भी हमें फेंसिंग करनी होती है या कोई चीज कवर करनी होती है दोनों तरफ से, तो हमें एक चीज का खास ध्यान रखना होता है कि फेंसिंग हमेशा बाउंड्री लाइन पे होती है। तो जब भी हमें फेंसिंग वगैरह करनी होगी तो हम उस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का या उस पर्टिकुलर एरिया का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, क्योंकि हमें बाउंड्री पे तो वर्क करना है। अब अगर हमें फेंसिंग की वायरिंग करनी है तो हम पार्क के अंदर थोड़ी कर देंगे, पार्क के चारों तरफ करेंगे। सो अगर हमें बाउंड्री लाइन पे वर्क करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। फाइन। अच्छा, एक चीज और, पेरीमीटर ऑफ any figure or any two figures remains same। यानी कि अगर हमें दो फिगर्स दिए गए हैं, सपोज हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को यूज करके मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, एक ट्रायंगल भी बनाया, ठीक। लेकिन मैंने इस वायर को जो यूज किया था और सिर्फ बाउंड्री क्रिएट करी है, तो दैट मींस इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर तीनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही लेंथ की वायर से बने हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है सपोज कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज सपोज 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड नाउ द सेम वायर इज यूज्ड टू क्रिएट अ रेक्टेंगल, फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल और फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें जो पेरीमीटर दिया हुआ है सामने वाली शेप का भी वही पेरीमीटर अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में जो यूनिट हमें दी गई होगी वही यूनिट आंसर में भी आएगी। क्लियर? अब इन तीन फॉर्मूलों की मदद से आप पेरीमीटर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, यूनिट शुड बी सेम। दूसरा, हमें करना क्या, अगर हमको फेंसिंग करनी है, हमें वायरिंग करनी है तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। थर्ड वन, अगर हमें पेरीमीटर दिया गया, हमें साइड निकालना है तो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लास्ट इज, एक पर्टिकुलर वायर से आप चाहे जितने शेप्स बना लें उन सब का पेरीमीटर सेम रहेगा और वो किस पे डिपेंड करेगा, वायर की लेंथ पे। यानी जितनी वायर की लेंथ होगी उतना ही पेरीमीटर उन शेप्स का होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक वायर से ये वाली शेप बनाई, दूसरी वायर लेके ये वाली शेप बना रहे हैं तो पेरीमीटर सेम आएगा, नहीं, सेम वायर से अलग अलग शेप्स का पेरीमीटर सेम होता है। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूलेस और हैं that you can note it down so that you can get better of it. Now suppose there is side of a square, हमें स्क्वायर का साइड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर बाय 4, ठीक। अब हमें निकालना है सपोज length of rectangle
तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेथ। और अगर हमें निकालना है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। ये सारे फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूलेज आपको हेल्प करेंगे, पेरीमीटर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इन फॉर्मूलोज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इनटू साइड, दूसरा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तीसरा है पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज पेरीमीटर बाय 4, next is length of rectangle, that is perimeter by 2 minus breadth. Now the breadth of rectangle, perimeter by 2 minus length. Now these are the 1 2 3 4 5 and 6 formulas on which you can solve any question of the perimeter. Now if you have any queries, any suggestions or any advices, you can drop them into the comment box and I will get back to you. Till then, keep learning, keep practicing.